ठीक है. You see, there is another example of salary. You can directly compare this by putting mathematical equations and solving them. It is quite easy. Try by yourself. Pause the video. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा. A's income is 70% of B's income. I'll read it in phases. मैं यहां पे आपको अप्रोच दिखा रहा हूं, समझना. If you understand this approach, any example of percentage you will definitely feel. I can guarantee you, any example of percentage you will feel like यार ये तो easy है ना, करना क्या है. और वो अप्रोच क्या है? आप थ्योरी पढ़े, मैथ्स लिखे, बात समझे. A's income is, I won't write anything, I'll write something like this. A's income is मतलब equal to, है ना. A is simple 70%, मुझे कुछ आता ही नहीं है लिखना, और 70% of B. ठीक है, डन. आगे बढ़ता हूं. नेक्स्ट, B's income is half of C. ठीक है. C's income is 20% of D. You see, these are three important steps that you have to understand. जो phases में पढ़ा मैंने और वो लिख लिया. अब समझो, if A's income is rupees 3500. Now if you observe, A का इनकम 35,000 दिया हुआ है, मतलब कुछ ऐसा 35,000 इक्वल टू, समझना, 35,000 इक्वल टू 70% ऑफ बी. ठीक है, 70% ऑफ बी. अब बी का वैल्यू मैं रखूंगा 1/2 सी. सी का मैं वैल्यू रखूंगा 20% ऑफ डी. सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें डी ढूंढना है. क्यों बी, क्यों सी, इंटरमीडिएट वैल्यूज क्यों ढूंढे, क्यों टाइम वेस्ट करे? मुझे डी ढूंढना है. आई कंप्लीटली रिप्लेस द इक्वेशन अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो देन आई कैन फाइंड डी डायरेक्टली हियर, सॉल्विंग इट इजीली, समथिंग लाइक दिस. यू सी, इट बिकम्स वेरी इजी. सो दैट इज 35,000 into, I guess, 100 into 2 upon, I think this 2 gets also cancelled, 7. There you go, 7 5s. So 5 2, I think it comes out as, it comes out as 10 lakh. Wow, good. ठीक है, so अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 5 lakh. Okay, so that comes out as 5 lakh. समझ आया? Yes or no? Done. ठीक है. So this is the way. This is the same thing that I have done here, right? I have done nothing new here. I have just done the equation replacement method. You see, B, C and D. That's it. Done. ठीक है. चलिए. I hope you understood. Very simple question. Just the part of calculation that you have to do. Otherwise, the approach should be this. Approach should be this, right? चलिए. आगे बढ़ते हैं. Next, miscellaneous kind of application. Very nice question. Just heads up before you solve. इस question को ध्यान से देखना and try to solve this question by word approach. And you know what I mean by word approach, है ना? If you have gone through that percentage basics video, try to solve it by this. ठीक है? First you need to bifurcate and then solve this question by word approach. You can take your time, pause the video, try by yourself. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, सो हियर यू सी, इन अ बास्केट देयर आर 60%, 25%, 80%, ब्ला ब्ला ब्ला. इसका मतलब क्या हुआ? सब परसेंटेज, हवा में बातें. सिर्फ परसेंटेज में बातें है. कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिया है हमें यहाँ पे. 22, 77, नो. All percentages are given. So in this kind of scenario, we can start with our own absolute value, and the best assumption while dealing with percentage questions would be 100, sir. Exactly. Sir, basket ही ऐसा ले लो जिसमें 100 fruits है. Perfect. In a basket 60% are mangoes. ठीक है. 100 में से 60 mangoes है. Rest are apples. 40 are apples. 60 mangoes, 40 apples. Fair enough. 25% of apples. अब apples की बात हो रही है, ध्यान से देखें. 25% of apples मतलब 25% of apples जो कि है 40 are green.
ग्रीन एप्पल्स, 25% ऑफ 40 कितना होता है 10, ठीक है। रेस्ट आर रेड, कोई बात नहीं, मतलब 40 में से अगर 10 ग्रीन है तो रेड एप्पल्स कितने हैं 30, रेड एप्पल्स आर 30, जस्ट अ मोमेंट, रेड एप्पल्स आर 30। सर अंडरस्टूड, पता चल गया, मतलब अगर ग्रीन एप्पल 10 है तो रेड एप्पल है 30, जो कि होगा अल्टीमेटली 75% ऑफ 40, हाँ वही होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ फर्दर बाइफर्केशन यहां पे करते हैं हम लोग, दैट इज मैंगो की बात करते हैं। मैंगो में 80% ऑफ मैंगोज आर रेड, 80% ऑफ मैंगोज आर 60, 80% ऑफ 60 48, अगर 60 में से 48 रेड मैंगोज है तो कितनी बची 12, जो कि होगी ग्रीन मैंगोज। फेयर इनफ, ग्रीन मैंगो 12 है, रेड मैंगो 48 है। सो अल्टीमेटली व्हाट आर द डिफरेंट नंबर्स वी हैव रिसीव्ड, ग्रीन मैंगो, रेड मैंगो, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, आई विल शो यू, ठीक है, आई विल शो यू। यहां 48, 12, 10 एंड 30, आप इन चारों का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 100। एंड लेट मी बी वेरी श्योर अबाउट दिस कि मोस्ट ऑफ यू आप यहां तक पहुंचे थे, लेकिन आई एम श्योर आपका आंसर जो एक्चुअल आंसर है वो नहीं आया है। आई विल शो यू हाउ, ठीक है। आप अगर यहां तक पहुंचे थे ना तो फिर आपने क्या गलती की, आई विल शो यू। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन हियर एज वेल। यू सी, सेम थिंग, 48 red mangoes, 12 green mangoes, 10 green apples and 30 red apples. That's the whole thing that you have also got. ठीक है, अब मैं सिंपल क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से देखें। I told you have to do this by word approach. What percentage of green fruits are mangoes? What? Sir, X. Percentage? Sir, divide by 100. Of? Sir, multiplied. Sir, green fruits. Green mangoes plus green apples, 12 plus 10, 22 sir, are equal to mangoes, उसमें से mangoes कितनी है 12। सर यहां पे दो गलती हो सकती है आपकी, एक आप यहां पे टोटल मैंगोज डाल दो 60, अरे भाई क्लियर पूछा ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स में से मैंगो कितनी है, क्लियर पूछा है ना। So we'll put only green mangoes. सीधी बात है, they don't have to mention what percentage of the green fruits are green mangoes. No, they just have to ask what percentage of green fruits are mangoes. Green fruits की कितनी mangoes है? Those are green mangoes we're talking about. So इसको आप solve कर सकते हो, and while solving this, you will definitely get your answer as 54.54%. Did you get this? If yes, very good. If not, I hope you understood this. ठीक है, डन, देयर यू गो। सो योर आंसर इज 54.54, राइट। चलिए, सो लुक, these are applications of percentage. We are not using anything new here. These are pure applications of percentage. Let's go for the next part. हाँ, this is also nice question. Pure application of percentage. परसेंटेज को कैसे रिलेट कर पाते हो आप, उसका क्वेश्चन है। ट्राई बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। इफ ए सैलरी इज 80% ऑफ बी सैलरी, देन एंड बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए सैलरी? सर ए का सैलरी बी का 80 है, तो बी का ए का होगा 20 सर, पक्का? नहीं सर, ए का अगर बी का 80 है तो बी का ए का भी 80 होगा ना सर? नहीं सर, सर लेट मी थिंक। सर 80 है ना, इसका 180 होगा सर, पक्का सर? नहीं सर, एक मिनट सर, 80 है ना, 100 से कितना दूर है ये? 20 पे। सर 120 होगा सर, पक्का? ऐसे नहीं करना आपको, बात समझो, ठीक है। यू विल हैव टू डू दिस टेक्निकली, है ना। भले आप एक बार ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है इन सारे क्वेश्चंस को, फिर आप इसको फटाफट कर पाएंगे। लेकिन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस होते कैसे हैं, और वही फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में आपको दिखा रहा हूं।
फिर आप क्विक प्रैक्टिस करके आप आराम से निकाल सकते हैं सारी चीजें। ध्यान से देखें, ठीक है। सो ए सैलरी इज 80% ऑफ बी सैलरी, ठीक है। कैन आई सिंपली राइट दिस, एज सैलरी इज 80% of B? Yes sir, you can definitely write this. Fair enough. Now so यहां पे भी कोई परसेंटेज की बात है ना, I can assume anything I want. Yes sir. What will be the best option to assume? Sir, इसको 100 assume कर लो, 100 रुपीज, तो A आ जाएगा 80 रुपीज। सिंपल सी बात है। Best assumption we can do, right? B I can assume as 100, A will be 80 because A is 80% of B. अब जिसका 80 है वो इसी को 100 assume कर लिया मैंने, 180, ठीक है। समझना बात को, ये क्या है A का सैलरी, ये क्या है B का सैलरी। फेयर इनफ। अब इसको भूल जाओ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में। B's सैलरी is what percentage of A salary? वर्ड बाय वर्ड अप्रोच। यहां तक तो कुछ सोचने लायक डिफिकल्ट है नहीं ना, वी कैन इजीली थिंक ऑफ दिस। नाउ यू अप्लाई वर्ड बाय वर्ड अप्रोच। क्वेश्चन पूछा है, हम नाड़ेंगे वैल्यूज, कैसे? आई विल शो यू। ध्यान से देखें, ठीक है। बी सैलरी सर 100 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। क्या ढूंढना है सर इसमें? सर एक्स ही तो ढूंढना है। बड़ा सिंपल हो गया ये तो हमारे लिए। सो सॉल्विंग दिस यू गेट 100 into 100 upon 80. Further solving this you get 125, which is your answer. That is B is 125% of A. As simple as that. वही चीज की है मैंने यहां पे। टाइप 2 छोड़ो। Then 100 is what percentage of 80? Answer is 125, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। डन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा, नाउ एक सेकेंड मेथड भी मैंने यहां पे आपको दिखाया है, ठीक है। इफ ए सैलरी इज 80% ऑफ बी, ए सैलरी इज 80%, सो फर्स्ट तो मैं 80/100 ऑफ बी लिख लूंगा। अब इसका क्विक कैलकुलेशन कैसे हो सकता है? 80/100 मतलब 4/5 लिख सकते हैं। फेयर इनफ। सो अल्टीमेटली A equals to 4/5B. This is something that we know, ठीक है। A equals to 4/5B. लेकिन पूछा क्या है? B is what percentage of A? अच्छा, यहां ऑफ के बाद क्या आया? A. यहां ऑफ के बाद क्या था? B. देखो, ऑफ B। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस पोर्शन। यहां ऑफ के बाद क्या है? ए। मतलब यहां पे आपका बेस बी सैलरी है, यहां पे आपका बेस है ए का सैलरी, ठीक है। जब बी का सैलरी बेस है तो ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, जो भी वैल्यू इसे मल्टीप्लाई की गई है वो बी के साथ मल्टीप्लाइड है। बट व्हाट वी नीड इट इज टू गेट इट मल्टीप्लाइड विथ ए। सो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि सर b इक्वल्स टू 5/4a। क्या बड़ी चीज है, कुछ बड़ा नहीं लिखा मैंने। a इक्वल्स टू 4/5b, तो b इज इक्वल्स टू 5/4a। फेयर इनफ। इसका मतलब क्या हुआ, बात समझे। 1.25a, 5/4 is 1.25. 1.25 can be represented as 125/100. 1.25 is basically 125/100. Now what does this represent? You only tell me. What does this represent? You read it. I'll read it for you. B is 125% of A. अरे हाँ सर, I'll read it again. B is 125% of A. There you go. सर नहीं पहला वाला अच्छा था। नहीं सर दूसरा वाला अच्छा था। विच एवर यू लाइक। आई पर्सनली इंसिस्ट दोनों आपको समझ आने चाहिए, बिकॉज आफ्टर सो मच ऑफ प्रैक्टिस यू विल फील के दोनों ही इजी है, ठीक है। राइट, आई हैड टू टीच यू बोथ। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ, ठीक है। सो दिस इज
theoretically it represents 125% of A. That's what we have gone through. I hope you understood this. Let's go to the next part. Beautiful question. Very good question. ठीक है? You can take your enough time and try to find out the answer. Please pause the video. चलिए, I hope आपने try किया होगा. So fresh grapes contains 90% water while the dry grapes contain 20% water. तो पहले तो fresh और dry grapes का उन्होंने bifurcation दे रखा है. बात समझना. तो मैं आपको यहां पे अगर सिंपल ऐसा कहूं that कि if I talk about fresh grapes, तो उसका bifurcation would be 80% water, whereas only 20% pulp. पल्प होगा ना, पानी होगा और पल्प होगा, मिक्स करके बनेगा ग्रेप. सीधी बात है. अच्छा, जबकि अगर मैं ड्राई ग्रेप की बात करूं तो ओनली 20% वाटर, वेरेज 80%, वही लिखा है ना, 90, सॉरी, ओनली 10% वाटर. सो आई कैन इरेज दिस हियर. ओनली 10%. Okay, sorry. Fresh grapes is 90%. I'm sorry. ठीक है, परसेंटेज पढ़ाई कर, सर क्या कर रहे हो सर, आप भी गलती कर रहे हो सर. ठीक है, पढ़ाई करने में हो गया. I'm sorry for that. चलिए, so fresh grapes contain 90% water. मतलब 90% water, 10% pulp और पानी मिलके बन गया grapes. 20% water. So 20% water, बाकी का 80% pulp. Fair enough, done. ठीक है. So ये मुझे रेशियो एक पता चल गया. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. अच्छा, हमारे पास क्या पड़ा है? What will be the weight of dry grapes available from 20 kg of fresh grapes? मतलब what do we have in our hand is 20 kg of fresh grapes. Fair enough. 20 kg of fresh grapes को हम लेके आगे बढ़ते हैं. That is this. So, अगर यही चीज मेरे पास 20 kg पड़ी है, बात समझना एवरीवन, यही चीज मेरे पास 20 kg पड़ी है, तो उसको 90 और 10% में डिवाइड करते हैं. 90% ऑफ 20 वुड बी 18 किलो, वेरेस 10% ऑफ 20 वुड बी 2 kgs. सो बात समझो, मतलब क्या हुआ? दिस इज द पल्प आई हैव. 2 किलो पल्प, प्योर पल्प विदाउट वाटर, प्योर पल्प पड़ा है मेरे पास 2 किलो, और सिर्फ पानी कितना है? 18 किलो. ठीक है, 18 kgs. नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? मुझे इसमें से बनाना है ड्राई ग्रेप्स. दिस इज द अवेलेबल चंक विथ मी, राइट? व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मेक ड्राई ग्रेप्स आउट ऑफ दिस. ठीक है. सो अच्छा, ड्राई ग्रेप बनाने के लिए ज्यादा क्या चाहिए, पानी या पल्प? आप बताओ सर. पल्प क्लियर दिख रहा है. ठीक है, हमारे पास पानी तो बहुत पड़ा है ना. अब पानी यूज करे ना करे डजंट मैटर, वी हैव टू मेंटेन दिस रेशियो. आई विल रिपीट दिस स्टेटमेंट, ध्यान से सुने. हमारा ड्राई ग्रेप बनाने का एक रेशियो है. दिस इज द रेशियो दैट वी हैव फॉर ड्राई ग्रेप्स, दैट वी हैव टू मेंटेन, राइट? पानी जितना यूज करना है करो, पल्प जितना यूज करना है करो, लेकिन रेशियो यही रहना चाहिए, तभी उसे हम ड्राई ग्रेप कहेंगे. ठीक है, डन. तो अब मेरे पास जितना पल्प है वो तो मैं यूज करूंगा ही करूंगा ड्राई ग्रेप बनाने के लिए. उसके साथ जितना पानी यूज होगा उतना कर लूंगा. सीधी बात है. 2 किलो पल्प मैंने यहां डाल दिया, 80% ऑफ द पल्प. मतलब मान लेते हैं यहां पे दैट हमारे पास ड्राई ग्रेप्स x kg बनता है. अगर आंसर जितना बनेगा ना वो x kg बनेगा इस पूरे में से, वो x kg का, समझना बात को, 80% सॉरी 80% ऑफ x क्या होगा? पल्प, जो कि कितना है? 2 किलो. और 20% ऑफ x क्या होगा?
वाटर जो कि कितना है 18 किलो। अरे नहीं, वो तो जरूरत के हिसाब से लेंगे ना, हमें मेनली तो पल्प चाहिए ना चीज बनाने के लिए। ठीक है, सो यहां से अगर मैंने सॉल्व किया कि 80% ऑफ x जो है वो 2 है, तो मेरा इंटरेस्ट है फाइंड x करने में। सो 2 into 100 upon 8 that comes out as I guess 280, sorry not 8, so that comes out as 2.5, x comes out as 2.5। समझ आया आपको? समझ आया नहीं आया? x का वैल्यू क्या आया 2.5। मतलब बात समझो, हमारे पास टोटल 20 किलो फ्रेश ग्रेप्स था, उसको मैंने अलग कर दिया, 2 किलो पल्प आया, 18 किलो पानी आया, उसमें से पल्प मैंने ले लिया, 80% पल्प का रेशियो जो मेंटेन करना है ना, उसके लिए मैंने 2 किलो पल्प ले लिया। अच्छा, 2 किलो पल्प सिर्फ मेरी ड्राई ग्रेप नहीं बनाएगा, पानी भी चाहिए होगा थोड़ा, लेकिन चाहिए होगा, तो वो और मैं कितना लूंगा 0.5। सर ये कहां से आया? ये मुझे ये आंसर मिलने के बाद पता चला। टोटल 2.5 kg है ना, टोटल इट्स 2.5 kgs, जिसमें से पल्प कितना है? सर वो तो 2 किलो है ना, पल्प तो हम नया बना नहीं पाएंगे, वो तो 2 किलो है। इसका मतलब टोटल अगर 2.5 है जिसमें से पल्प 2 है, तो टोटल 0.5 kgs। दिस इज जस्ट टू शो यू, अदरवाइज हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है। 2.5 किलो ड्राई ग्रेप्स, 2.5 kgs ड्राई ग्रेप्स विल एबल टू मेक आउट ऑफ 20 kg of fresh grapes. How many of you got this? Very few, I am sure about it. This is good question, right? And if you got the correct answer, amazing, very good beta. ठीक है? So these are about applications of percentages, right? You see, that's what I have done here. Same thing which I showed you, that's what I have done here. यही 10 किलो पल्प जो है, मतलब 2 kg पल्प है 10%, वही बनेगा यहां पे ड्राई ग्रेप्स में। ठीक है, डन। इफ समवन डिडंट अंडरस्टैंड, आई हैव जस्ट शोन यू देयर अनदर टाइम। ठीक है, दिस इज अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेजेस।